Okay, let's start today's session. So earlier in the last lecture we had discussed that we have to create multiple indexes. So one index may be related to all the tokens that we have. So and then we discussed that sometimes for phrases we may have to create index for bywords or try words. Then to manage wildcards, we discussed that we have to generate index for n-grams, and also for soundex algorithm if we are using, we may be creating index for that. So there are so many indexes that we create just to reduce the time taken by the query, just to enhance the computational efficiency. Obviously, these indexes will take more space, but idea is to answer the query as soon as possible. So in today's session, we will discuss what are different ways to construct the index and what are the strategies that we need to consider, considering in mind the limited main memory. Because every time we have to search index, it has to be in the main memory. So that is our primary concern. Now, before going further, we will discuss revise few of the hardware basics, which you are might be aware. Uh, so all of you might be aware that access to data in memory is much faster. Uh, Usually, it is considered 10 to raised power 3 times faster as compared to the access the data on the disk. So disk, all the secondary storage area. So access to any secondary storage area. So that is very slow as compared to the main memory. Even if you use the flash memories, or nowadays the concept of connected storage that we call. So nowadays in server, we have the connected storage where uh, hard disk is not a simple mechanical device, but it is actually flash drives. But still, accessing data from the secondary storage area, because their volume is very high, it always takes more time as compared to the main memory. Further, disk 6 is when we are searching for a block, when we are searching for the data in the memory. So when we are searching, so obviously no data is being transferred, so this time, disk seek time, so this is just a wastage, so this is just a time which is getting wasted. So we have to reduce the disk 6, so till the disk head is positioned over the actual data. So this disk seeking time is a total wastage of time, because we are not actually transferring any data during this time. So most of the times we prefer to transfer rather than a word from the memory. Uh, we try to divide the memory into the large chunks. So this you have studied in the operating system. Operating system, when you studied the memory management concept, so there you have in the memory management you have studied why do we need paging, why do we need segmentation, why we divide the memory into the pages and segments. So there you have already studied that we divide the our main memory and the secondary storage in the we visualize them as a large chunks. So main memory we may call them pages, or in the secondary storage we may call them as blocks. So at a time when we read it, we read the full chunk of data rather than reading only one word inside that particular memory cell. We read the full block of the data. So whole disk input output is block based. So reading or writing, we read the full blocks and we write the full blocks. And size of the blocks, you are aware that we have the in logical memory we have the different size of block, and in physical memory
we may have the different size of blocks. They may be same, but it is up to us that how we have organized these memory blocks. So based on different size of blocks, we can have the different addressing way. So different way of addressing these blocks. So all of you have studied in the operating system memory management unit. So this is a usually way we organize our memory. So these are the basics you already aware of. Now the server which are used in IR systems. So they typically you have gigabytes of memory, and nowadays terabytes. Even the server in UIT that I use has 768 GB of main memory. So the main server which we use for virtualization, so that also has 768 GB of main memory. But usually in professional data center, this is in terabytes or even very hundred of terabytes in the main memory. So available disk space, usually it is of very high magnitude. So secondary storage is of very high magnitude. The fault tolerance is very expensive. It is much cheaper to use many regular machines rather than one fault tolerant machine. So normally in data center we have the multiple machines. So rather than having a single large server of a very large memory and very large secondary storage, we use a distributed computing. So in this unit, we will later on, maybe in the next lecture, we will study the how Google is managing it. So these things. But till now, you assume that we have one server with a very large main memory, and we also have a very large secondary storage. So assumption, whenever we do calculation, we assume that so these are all the numbers which may vary based on the hardware. So I'm just taking that, okay, 5 millisecond is taken in the seeking a word, then around 0.02 microsecond to transfer time per byte depending on processor's clock rate. So then in the nanohertz, we have the processor's clock rate 10 raised to 9 per second. So, so in the gigahertz. So in the low level operations, like comparison, doing any comparison which we do in the indexing or swapping a word. So that we do in the sorting. So it takes time around, let's say, 0.01 microsecond. Size of main memory, we are assuming in gigabytes. So again, right now we are assuming a single server of, let's say, which is available, let's say, of 512 GB or 768 GB or around that. And disk space is higher. So it contains all the data that you have. So using these assumptions, we will discuss in that how to create index. Now, why these assumptions? Because these are bare minimum. So usually you have faster than this in any data center. So these are bare minimum which are required. You might be wondering that, okay, why lesser than that? Or why we may sometimes even in your maybe laptop you may have 8 GB or 16 GB of main memory, but here we are taking an average case, an average index, smaller index. Again, I'm not taking a full web space index like Google, a smaller index, and based on that, how our algorithm will fit in that. Is it clear to everyone? सबको clear है? Yes, sir. So हम data set क्या लेंगे? जैसे this is a very popular data set. Reuters is a popular news agency. So NLTK, whenever you do the any NLP based work, so this data set is easily available. It contains news article in this format. This is actually the way they are visualized, but actually in data set you have title and other text are there.
So images are not there in dataset. So this kind of Reuters news dataset, which is very popular for initial uh, understanding and initial for experimentation. So usually it has documents around 8 lakh documents. Average number of tokens per document, that is number of words per document, is 200. The terms per word types for different types of words. So dictionary size is 4 lakh. Average number of bytes per token. Now again, these are just assumption, like 6 bytes per token. So token is, so let's say it has 4 letters, and again we are assuming uh, 1 byte per letter, or let's say it has average 6 letters, so 1 byte per letter, then average number of bytes are 6 bytes if we include spaces. And if we do not include spaces, punctuation, average number of bytes per token we need 4.5. For per term and token differences, in term we also have the frequency. So for to store the frequency at how many time it occurring, we need to spend extra number of bytes. So 4.5 to 7.5. Then non-positional postings. Non-positional means we are just storing the document ID. We are not storing their position inside the document. So for each token, these are the number of non-positional postings. Now, why we are considering this 4.5 and 7.5? So this is not uh, generic K for English. So these are just for this Reuters dataset. So in general, if you pick up another dataset, so these numbers may vary. So these are not representative of English. So you may argue that okay, in your dataset, the average number of size of word is larger, and it is maybe coming 5 bytes per word or 6 bytes per word. Then you may say that okay, I'm not using ASCII code, I'm using Unicode. So when you use a Unicode, you have 16 bits per character. So 16 bits per character. So if you have average 6 characters, so 96 bits or the 12 bytes. So you may argue with these numbers. So I'm just giving these numbers just as a representative to understand the concept. So these are not, you can say, always true. So these are just an assumptions, which are based on Reuters dataset, which is popularly known as RCV1, and these are their statistics, a particular dataset statistics. Now recall what we need to do when we create index. So these slides we have already seen. ये हमने पहले भी देखा था कि डॉक्यूमेंट 1 में जितने वर्ड हैं उनको लिस्ट कर देंगे हम, और उनकी फ्रीक्वेंसी लिख देंगे साथ साथ कि डॉक्यूमेंट 1 में आ रहे हैं. फिर डॉक्यूमेंट 2 के लिख देंगे, सो वन फॉर ऑल द डॉक्यूमेंट्स. ऐसे सभी डॉक्यूमेंट्स के पहले तो एक एरे में डालते जाएंगे, एक लिस्ट में डालते जाएंगे कि डॉक्यूमेंट 1 में आई आया और आगे डॉक्यूमेंट आईडी, फिर डेट आया, फिर इनएक्ट आया, फिर जूलियस आया. सो ऐसे एक लिस्ट में डाल देंगे. देन नेक्स्ट थिंग इज, अब इसको सॉर्ट करना हमने. सो नेक्स्ट थिंग इज सॉर्टिंग दिस एरे. सॉर्टिंग करके हमें जो वर्ड्स अल्फाबेटिकली सॉर्टिंग करेंगे, एम्बिशियस सबसे ऊपर आ जाएगा, जो वर्ड्स सेम है वो इकट्ठे आ जाएंगे, सो दैट वी कैन कंबाइन देम टू अ पोजीशनिंग. सो सॉर्टिंग इज द की स्टेप जो सबसे ज्यादा टाइम लेने वाला है. एक बार सॉर्टिंग हो जाएगी, उसके बाद इंडेक्स क्रिएट करना इजी है. सो पहला स्टेप ये क्रिएट करना, इट इज नॉट वेरी टफ, बिकॉज एक एक करके डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हो. मेन मेमोरी में एक डॉक्यूमेंट आ गया, उसको लिस्ट में डाल दिया. सो मेन मेमोरी में एक चल रहा काम, सो इट इज नॉट गोइंग टू टेक मच टाइम. कोई ज्यादा इसमें आप इनोवेशन नहीं कर सकते, सिंपल एल्गोरिथम है जस्ट टू पुट इनटू एरे. बट नाउ सॉर्टिंग. सो सॉर्टिंग अब हमें करनी है ऑफ दीज टर्म्स. सो अब सॉर्टिंग करनी कितनी आइटम्स की है. सो Reuters का डाटा भी देखें तो 100 मिलियन आइटम्स की सॉर्टिंग करनी है. सो 100 मिलियन आइटम्स को हमें सॉर्ट करना है. ऑब्वियसली दीज आर नॉट फिटिंग इनटू द मेन मेमोरी. सो मेन मेमोरी में तो सारा का सारा वो जो एरे आपने क्रिएट किया है
So this array of 100 billion items, so this is not going to fit into the main memory, और हमें चाहिए ये final array. So now how to do this? So sorting के आपने algorithms पढ़े थे, algorithms अगर आपने algorithm design and analysis कोर्स पढ़ा था, so कौन सी बुक से पढ़ा आपने? Anyone? सर कॉर्मन. तो थॉमस कॉर्मन जो इट इज वेरी गुड बुक. सो उसमें एक तो sorting के algorithms हैं जो which are quick sort, merge sort, insertion sort, selection sort, ठीक है. उसी बुक में एक अलग चैप्टर दिया होता है जिसको हम सेकेंडरी स्टोरेज पे sorting करनी है. तो उन एल्गोरिथम्स का नाम क्या होता है, उनको कैटेगराइज किस कैटेगरी में करते हैं? नहीं पता सर. एनीवन एल्स, किसी को आइडिया हो? सो वी कैटेगराइज देम एज एक्सटर्नल sorting. सो अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स काफी ज्यादा है, 100 बिलियंस है. ऑब्वियसली दीज आर नॉट फिटिंग इनटू द मेन मेमोरी. काफी ब्लॉक्स में आएगा. सो कई ब्लॉक्स मेन मेमोरी में आ सकते हैं और बाकी के सारे ब्लॉक्स हार्ड डिस्क पे होंगे, सेकेंडरी स्टोरेज पे होंगे. एंड अगेन जो मैंने स्टैटिस्टिक दिखाया था कि भाई हार्ड डिस्क में सीक में भी टाइम लगता है और ट्रांसफर करने में भी टाइम लगता है. अल्टीमेटली ऑपरेशन तो आपका मेन मेमोरी में होगा, so you have to transfer data to the main memory and then sort. So external sortings are the algorithms which we use, and वही अभी आज हम थोड़ा डिस्कस करेंगे. So मैं यानी कि मेन इंडेक्स कंस्ट्रक्शन को स्केल अप करने के लिए, so इन मेमोरी इंडेक्स कंस्ट्रक्शन अगर करते हैं that is not going to scale up. So लार्ज कलेक्शंस के लिए इवन जो रूटर्स का डाटा मैंने दिखाया that is also only for 1 year. अभी जो हम स्टैटिस्टिक्स लेके चल रहे हैं 1 साल का डाटा न्यूज का. So अभी जो हार्डवेयर कंस्ट्रेंट्स हम मान के चल रहे हैं तो हमें मेमोरी, सीक टाइम, ट्रांसफर टाइम, डिस्क में सीक टाइम, ट्रांसफर टाइम और स्पीड ऑफ ट्रांसफर, ये सब कंसिडर करना है. सो द फर्स्ट एल्गोरिथम जो हम करेंगे that is a sort based index construction. So as we build the index, we parse documents one at a time. एक एक करके डॉक्यूमेंट उठाएंगे, उसमें से जितनी आइटम्स है उनको पास करते जाएंगे. We cannot use the compression trick. So कई बार ये माइंड में आता है कि साइज बहुत बड़ा है तो कंप्रेशन ट्रिक्स यूज करो, कंप्रेस कर दो डाटा को. कंप्रेशन ऑलवेज टेक्स टाइम. अपना इसकी कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है और कंप्रेस जो इनकोडेड आइटम्स होती है उनको सॉर्ट करना इवन कई बार टफर हो जाता है. और अगर हम बार बार कंप्रेस डिकम्प्रेस करेंगे सो इट मे बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स. तो जस्ट टू सेव स्पेस हमारा टाइम के साथ ट्रेड ऑफ हो जाएगा, कितना टाइम लग रहा है. सो कंप्रेशन ट्रिक्स कई बार यूजफुल होती हैं बट इट इज नॉट ऑलवेज यूजफुल. तो सो फाइनल पोस्टिंग किसी भी आइटम की जब तक हम सारे डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ लेते तब तक इनकम्प्लीट है. सपोज यू आर लुकिंग फॉर ए वर्ड न्यूयॉर्क, ठीक है, ये न्यूज में आ रहा है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट में आ रहा है उसकी पोस्टिंग है कि डॉक्यूमेंट आईडी. बट जब तक सारे डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ोगे तो कंप्लीट नहीं हो पाएगी. पोस्टिंग्स वी बिलीव कि वो भी सॉर्ट रहनी चाहिए बट अभी हम फोकस कर रहे हैं कि मेन आइटम्स जो ये टर्म्स हैं इनको सॉर्ट करना है. इसके लिए तो पोस्टिंग्स के लिए हमने डिस्कस किया था वी विल यूज अ मिन हीप एंड मिक्स हीप, बट अगेन उसके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे. अब हम एक और assumption ले रहे हैं कि 12 बाइट्स लगेंगे हमारी हर पोस्टिंग एंट्री के लिए. व्हाई वी आर टेकिंग assumption, जस्ट कि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी हम अंडरस्टैंड कर पाए. हमें स्टोर क्या क्या करना है, एक तो टर्म स्टोर करनी है, एक्चुअल जो टोकन जिसको हम इंडेक्स कर रहे हैं, एक पॉइंटर टू द डॉक्यूमेंट आईडी जो पोस्टिंग लिस्ट पे कहाँ पे किस किस पॉइंट डॉक्यूमेंट को पॉइंट कर रहा है, और एक फ्रीक्वेंसी. फ्रीक्वेंसी हमने देखा था मर्ज एल्गोरिथम में वी हैव यूज्ड टू रिड्यूस द कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मर्ज एल्गोरिथम, जिसमें हम जो जिनकी फ्रीक्वेंसी कम है उनको पहले इंटीग्रेट कर रहे थे. तो ये तीनों को लेट्स से वी अज्यूम कि टोटल तीनों का मिला के 12 बाइट्स हमें चाहिए. और ऐसे ही हमें इतनी अगर टर्म्स को स्टोर करना है सो 12 इंटू दीज मैनी टर्म्स, सो टोटल इतना बड़ा हमें हमारा डाटा सेट बन जाएगा.
यू विल में से कि हाँ ये तो बहुत बड़ी मेमोरी नहीं हुई, ये तो बहुत बड़ा 12 into this is not going to be very large. You can do it memory today, but हमारी अंडरस्टैंडिंग क्या है, अभी तो हम एक साल का डाटा उठाया हमने र्यूटर्स का, बट अगर आप न्यूज़पेपर का डाटा उठाओगे तो जैसे न्यूयॉर्क टाइम्स का तो 150 साल का डाटा है, इंडिया में भी टाइम्स ऑफ इंडिया 1840 में स्टार्ट हो गया था, तो उनका भी बहुत बड़ा डाटा है। तो अभी जस्ट हम फॉर टाइम बीइंग अजम्पशन लेके चल रहे हैं कि इतने डाटे को भी हम कर लें। सो इवन दो यू कैन से कि भी हाँ ये तो बहुत बड़ा डाटा नहीं हुआ, 12 into these many bytes is not a very big data, but still we are doing these algorithm in keeping in mind कि future में we may have to deal that much large amount of data. Even ये तो एक साल का डाटा है, बट इससे भी बड़े बड़े डाटा सेट्स के ऊपर हमें काम करना होगा, तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख रहे हैं, ठीक है। So now same algorithm for disk, if you say कि भी disk में भी same algorithm यूज कर लो जो नॉर्मल क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट होते हैं, same index construction algorithm for, so अब अगर disk में भी same algorithm यूज करते हैं like quick sort we use in the for disk sorting as well, so what would happen for 100 million records, it would become very slow. You know that quick sort में क्या होता है कि आपका pivot element है, then you comparing the elements with the pivot and then changing these elements. हार्ड डिस्क में इतना उनको सीक करना और दोबारा से उनकी पोजीशन चेंज करना, इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम। सो हार्ड डिस्क में ये क्विक सॉर्ट चलाना इट वुड टेक लॉट ऑफ टाइम, सो दैट्स व्हाई हार्ड डिस्क में ऐसे एल्गोरिथम डायरेक्टली नहीं चला सकते, तो we need external sorting algorithm. We have to consider that कि भी हार्ड डिस्क में सीधा डायरेक्ट नहीं चलाएंगे, उसको मेन मेमोरी में लेके आएंगे, then we have to do it. So main bottlenecks क्या आएंगे? We have to parse and build posting entries one document at a time. हम धीरे-धीरे अपनी posting entry भी build up कर रहे हैं, एक-एक करके entries आ रही हैं. Now we sort the posting entries by term. पहले term wise sort कर रहे हैं, फिर document within each term. So random disks के साथ अगर हम करें so काफी स्लो हो जाएगा 100 मिलियन कोड। तो अगर हम मान के चलें कि 2 डिस्क सीक लगते हैं क्विक सॉर्ट वगैरह में और n आइटम्स हैं, n कितना है हमारा 100 मिलियन, तो यू नो डेट की sorting एल्गोरिथम n log n लेते हैं टाइम, सो 100 मिलियन अगर n की वैल्यू है सो 100 मिलियन log 100 मिलियन इतना टाइम लग जाएगा, और हर ऑपरेशन में 2 डिस्क के सीक टाइम लगेंगे और उसके बाद डिस्क ट्रांसफर टाइम वो सब भी अलग से लगेगा। सो दैट्स व्हाई क्विक सॉर्ट डायरेक्टली नहीं लगाएंगे हम, अब हमें ब्लॉक वाइज उनको रीड करना पड़ेगा। सो दैट्स व्हाई आवर फर्स्ट एल्गोरिथम व्हिच वी नेम एज ब्लॉक सॉर्ट बेस्ड इंडेक्सिंग। सो सॉर्ट बेस्ड इंडेक्सिंग करनी है बट ब्लॉक वाइज करनी है। हमारे ब्लॉक में हर रिकॉर्ड का साइज कितना है 12 बाइट। अगेन दिस इज अजम्पशन कीपिंग इन माइंड कि टर्म का साइज और सबको हम 4 बाइट ले रहे हैं, बट दिस में वेरी डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे इंडेक्स बना रहे हैं। अब हमें 100 मिलियन 12 बाइट के रिकॉर्ड को सॉर्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ब्लॉक का साइज डिफाइन करेंगे, एक ब्लॉक में कितने रिकॉर्ड आएंगे। नाउ दिस डिपेंड्स अपॉन द वे यू हैव डिफाइंड योर लॉजिकल मेमोरी। आपकी लॉजिकल मेमोरी आपने डिफाइन कैसे की है उसके ऊपर ब्लॉक का साइज डिपेंड करेगा। सो यू नो डैट कि लॉजिकल मेमोरी में ब्लॉक को हम पेज कहते हैं एंड फिजिकल मेमोरी में वी कॉल इट एज ए ब्लॉक। अब ये साइज कितना है, अभी तो अजम्पशन ले रहे हैं कि 10 मिलियन रिकॉर्ड आ जाएंगे, बट अगेन द साइज डिपेंड्स अपॉन योर एड्रेस स्पेस। वो अगेन इट इज डिपेंडेंट अपॉन योर प्रोसेस कि आपका प्रोसेस कैसे लेके चल रहा है। सो अभी अजम्पशन लेट्स से वी टेक अजम्पशन की एक ब्लॉक में 10 मिलियन रिकॉर्ड आ रहे हैं, तो टोटल 100 मिलियन के लिए 10 ऐसे ब्लॉक को हमें सॉर्ट करना है। सो बेसिक आइडिया क्या एल्गोरिथम का, सो अक्यूमुलेट पोस्टिंग फॉर ईच ब्लॉक। एक ब्लॉक पहले भर लेंगे पूरा 10 मिलियन रिकॉर्ड जिसमें रिकॉर्ड आ रहे हैं, उस ब्लॉक को सॉर्ट करेंगे और उसको वापस डिस्क पे राइट कर देंगे। इस तरह से हम हर ब्लॉक को बारी बारी से रीड करेंगे, उसको इंडिविजुअली सॉर्ट करेंगे एंड देन वी राइट बैक टू द डिस्क। यानी एक ब्लॉक मेमोरी में लेके आए, उसको इंडिविजुअली सॉर्ट किया। इंडिविजुअली कैसे करेंगे, यूजिंग सेम क्विक सॉर्ट एंड मर्ज सॉर्ट।
उसको सॉर्ट करके वापस हार्ड डिस्क पे लिख देंगे। सो इससे हमारा क्या होगा, हार्ड डिस्क से हमें एक बार ही एक ब्लॉक उठाया और सॉर्ट किया और वापस हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क के एक्सेस एक ब्लॉक को सॉर्ट करने में सिर्फ 2 बार हार्ड डिस्क को एक्सेस किया, जस्ट फॉर रीडिंग एंड देन टू राइट बैक। वी डू इट फॉर ऑल द ब्लॉक्स। अब हार्ड डिस्क में सारे ब्लॉक इंडिविजुअली सॉर्टेड है। अब हमें एक दो दो ब्लॉक उठाने हैं और उनको मर्ज करना है। वी हैव टू पिक 2 ब्लॉक्स एट अ टाइम एंड देन वी मर्ज देम एंड देन स्टोर बैक इनटू द मेन मेमोरी, स्टोर बैक इनटू द सेकेंडरी मेमोरी। सो जैसे ये पहला ब्लॉक है, इसको इंडिविजुअली लेट से हमने सॉर्ट कर लिया और हार्ड डिस्क पे रख दिया। फिर ये दूसरा ब्लॉक इसको सॉर्ट करके हार्ड डिस्क पे रख दिया। ऐसे हमने सारे के सारे ब्लॉक कर दिए। फिर हम दो दो ब्लॉक उठाएंगे, इन दोनों ब्लॉक को मेन मेमोरी में लेके आए एंड इन दोनों को सॉर्ट किया एंड बड़ा ब्लॉक बन गया। ऑब्वियसली बड़ा ब्लॉक तो रिकॉग्नाइज होगा, यानी कि 2 ब्लॉक सॉर्टेड रहेंगे एंड देन वी स्टोर बैक इनटू द हार्ड डिस्क। तो अब हमने कितने ब्लॉक मेमोरी में लेके आने, सो दिस डिपेंड्स अपॉन योर लॉजिकल मेमोरी साइज। सो मेमोरी का साइज कितना बड़ा है, सपोज आपको टोटल 10 ब्लॉक सॉर्ट करने हैं एंड मेमोरी में एट ए टाइम 3 ब्लॉक आ सकते हैं। सो जितने ब्लॉक्स मेमोरी में आ सकते हैं, यू पुट देम इनटू द मेन मेमोरी। उनको 2 या 3 जितने भी आ सकते हैं उनको आप सॉर्ट करोगे तो आपके पास 3 ब्लॉक सॉर्टेड रह जाएंगे एंड देन यू स्टोर बैक। इस तरह से 3 ब्लॉक या जितने ब्लॉक आ सकते हैं मेमोरी में आप उठाओगे, उनको सॉर्ट करोगे, देन यू स्टोर बैक। सो अब हार्ड डिस्क में क्या होगा, पहले आइट्रेशन में तो एक एक ब्लॉक सॉर्टेड था, अलग अलग ब्लॉक थे। दूसरी आइट्रेशन में सपोज 2 ब्लॉक करके आप सॉर्ट कर रहे हो, तो लेट्स से ये दोनों ब्लॉक अब इंडिविजुअली सॉर्टेड है। इसमें एंट्रीज लेट से आ रही हैं ए से लेके, सॉर्ट करने पे ए से लेके जे तक, इसमें आ रही है के से लेके जेड तक। इन दोनों को भी सॉर्ट कर दिया और इसमें आ रही है ए से लेके लेट से एल तक, क्योंकि जरूरी नहीं है कि जब सॉर्ट करें तो वो एंट्रीज ए टू जे ही आए। और इसमें आ रही है एम से लेके जेड तक। ऐसे करके आपने 2 ब्लॉक्स को सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये क्लियर है सबको, ये स्टेप क्लियर है। तो सब में अलग अलग आ सकता है, इसमें भी ए से, ऐसा भी हो सकता है इसमें ए से डी तक ही आए और देन ई टू जेड तक आए, ऐसे सब में अलग अलग हो सकता है। ये स्टेप क्लियर है सबको? यस सर। तो यानी कि पहले तो इंडिविजुअल ब्लॉक सॉर्टेड था जैसे, अब हमारे पास 2 ब्लॉक को उठा के हमने इंडिविजुअली ऐसे डिवाइड कर दिया जैसे ऊपर दिख रहा है। बट अभी हमने और अब उठाना, अब हम किस किस को उठा सकते हैं, अब ए टू जेड और ए टू एल को उठा सकते हैं और उसमें भी अलग अलग सॉर्ट कर सकते हैं। इस तरह से हमारे हायरार्की वाइज हम उठाते जाएंगे ब्लॉक, और कितने आइट्रेशन लगेंगे जब तक कि सारे के सारे ब्लॉक इंडिविजुअली सॉर्ट नहीं हो जाते। सो अल्टीमेटली क्या होगा, जब ए टू जेड और ए टू एल उठाएंगे, इन दोनों ब्लॉकों को सॉर्ट करेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि इसमें एंट्रीज ए टू डी तक आए और इसमें ई टू से एल तक आए। तो इस तरह से हम 2 ब्लॉक उठा उठा के ऐसे कंपेयर करते जाएंगे एंड और इंडिविजुअली सॉर्ट करते जाएंगे। सो कितने ब्लॉक मेमोरी में एट अ टाइम रखने हैं, जितना मेमोरी का साइज है। एंड इन दिस वे हायरार्किकली वी कीप ऑन सॉर्टिंग इट टिल वी सॉर्ट द फुल स्ट्रक्चर। जब तक कि हमारी पूरी स्ट्रक्चर सॉर्ट नहीं हो जाती तब तक हम करते जाएंगे। सो दिस टाइप ऑफ एल्गोरिथम इज कॉल्ड द ब्लॉक बेस्ड एक्सटर्नल सॉर्टिंग। सो दिस इज एक्सटर्नल सॉर्टिंग, एक एक करके ब्लॉक उठा के देन वी विल कीप ऑन डूइंग इट। ये क्लियर है सबको? सब हमें टाइम कितना लगेगा, हर ब्लॉक को रीड करना है और फिर सॉर्ट करना है। क्विक सॉर्ट, अब उस ब्लॉक में कितनी एंट्रीज हैं उसके बेस पे क्विक सॉर्ट को टाइम लगेगा। क्विक सॉर्ट तो हमें पता है n log n टाइम लेते ही लेता है। एंड अब उसको रीड करना है एंड देन उसको सेव करना है, तो जितनी एंट्रीज हैं वो 2 into उतना हमारा टाइम लगेगा। तो अगर एक ब्लॉक का साइज 10 मिलियन यानी कि n की वैल्यू 10 मिलियन अगर हमने assumption ली है, तो इतने स्टेप्स लगेंगे।
सो अगर हमें एस्टिमेट करना हो टोटल टाइम टू रीड ईच ब्लॉक फ्रॉम डिस्क एंड देन सॉर्ट इट, सो इट इज 10 टाइम दिस एस्टिमेट। हमें 10 sorted रन करने पड़ेंगे मैक्सिमम। सो दिस इज अ वर्स्ट केस सिनेरियो फॉर 10 million record each. So we need 2 copy of data on the disk. हमेशा ही हमें डाटे की दो कॉपी जब हम सेव करेंगे, एक कॉपी वहां पड़ी है, एक कॉपी मेन मेमोरी में पड़ी है। सो उसको हम जब सेव कर रहे हैं, जब हम 2 ब्लॉक से फिर एक ब्लॉक में लेके आ रहे हैं, तो हमें 2 कॉपीज में उसको अगर लेके आएंगे तो इट वुड बी इजियर। तो बट वी कैन ऑलवेज ऑप्टिमाइज ऑन दिस थिंग। सो अगर हम इसको एल्गोरिथम की फॉर्मेट में लेके आना हो, सो जब तक कि सारे डॉक्यूमेंट प्रोसेस नहीं हो जाते हमारी लूप लगेगी टिल ऑल द डॉक्यूमेंट आर प्रोसेस्ड। सो हम ब्लॉक में सो वी नेक्स्ट ब्लॉक उठाएंगे एंड उसका इन्वर्टेड इंडेक्स बनाएंगे, उसमें जितने भी हैं उसका इन्वर्टेड इंडेक्स बनाएंगे, उसको यानी कि ब्लॉक बेस सॉर्ट बेस इंडेक्सिंग करेंगे, इन्वर्टेड इंडेक्स बनाएंगे, उसको सॉर्ट करेंगे एंड उसको फिर फाइनली हार्ड डिस्क पे लिख देंगे। और ये स्टेप होने के बाद आफ्टर दिस स्टेप जब भी हमारा नया ब्लॉक बनेगा उसको पुराने ब्लॉक्स के साथ मर्ज कर देंगे। सो जो भी हमारा नया ब्लॉक बना है वी मर्ज विद द अर्लियर ब्लॉक्स। सो हम एक एक करके डॉक्यूमेंट्स रीड करते जाएंगे, नया ब्लॉक बनेगा, नया ब्लॉक जैसे बनेगा उसको पुराने ब्लॉक के साथ मर्ज कर देंगे। तो पुराने ब्लॉक्स जितने भी बने हुए हैं उनके साथ सॉर्टेड रहेगा। तो एल्गोरिथम चलेगा कैसे, तो हम एक एक करके डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं, एक एक करके डॉक्यूमेंट रीड कर रहे हैं एंड पहले हमारा पहला ब्लॉक बन गया। सो दिस इज ब्लॉक 1। इसमें टर्म्स आते हैं, तो इसमें कितनी टर्म आ सकती है 10 मिलियन। जैसे इसमें 10 मिलियन आई, इसको हमने सॉर्टेड ही रखा और हार्ड डिस्क पे स्टोर कर दिया। सो वी स्टोर ऑन द हार्ड डिस्क। सो हार्ड डिस्क पे ब्लॉक B1 है। फिर हम आगे डॉक्यूमेंट रीड करते रहे। नेक्स्ट जब ब्लॉक बन गए B2 जिसमें भी 10 मिलियन आ गई हैं एंट्रीज, इसको भी इंडिविजुअली सॉर्ट किया और इसको जब हार्ड डिस्क पे सेव किया, अब हम दोबारा से इन दोनों को लेके इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया, दोनों को मिला के दोनों को मर्ज कर दिया ताकि B1 और B2 इटसेल्फ आर सॉर्टेड। सो B2 जब क्रिएट किया तो ये अपने आप में सॉर्टेड था, बट जैसे ही हार्ड डिस्क में लिखा उसके बाद एक और स्टेप करके इसको मर्ज कर दिया B1 में। सो B1 और B2 आर नाउ इटसेल्फ सॉर्टेड। फिर हम आगे आगे डॉक्यूमेंट पढ़ते गए। नाउ वी मेक अनदर ब्लॉक B3 जो इंडिविजुअली सॉर्टेड है, इसको भी जैसे हार्ड डिस्क पे लिखा राइट किया, उसके बाद हम इन तीनों को फिर सॉर्ट कर दिया। इस तरह से जैसे जैसे इंडेक्स बनता जाएगा हम नए नए ब्लॉक्स बनाते जाएंगे, बट नया ब्लॉक जैसे ही बन जाएगा हार्ड डिस्क पे लिखते सार ही उसको पुराने ब्लॉक के साथ मर्ज कर देंगे। सो इन दिस वे दिस एल्गोरिथम विल कीप ऑन मर्जिंग द ब्लॉक्स एंड आपका जो इंडेक्स बनेगा वो प्रोग्रेसिवली सॉर्टेड ही रहेगा। ये क्लियर है सबको? एनी डाउट इन दिस?